Okay. Is my screen visible? Is my screen visible, Rajat? Oh. Previously we are basically first of all thank you for joining today's session. Welcome to Networker IT Solution. Today we are going to discussing a very important concept about layer 2 technology, which is nothing but your switching layer. Okay. Basically there are three types of layer 1, layer 2, layer 3. So now we are study the layer 1 concept, like we are doing multiple kinds of physical technology, what are the cables, what are SFP, what are the switches, we are doing all these things. Okay. So today we are going to what, Rajat? Are you saying something? Okay. Today in this particular session, we are going to discuss a very important topic related to layer 2 technology, which is nothing but your switching layer. Okay. So the technology is very important and also very powerful concept related to the switching layer, which is nothing but your CDP. What, Rajat? Okay, sorry. Okay, sorry. Now am I audible? Okay. So as previously we are discussing lot of technology related to layer 1 concept, because network divided into, most probably network divided into three layers: layer 1, layer 2 and layer 3. So previously we are discussing lot of technology, lot of concept related to the layer 1, which is the physical layer. Okay, in physical layer we are dealing with various kind of cables, various kind of networking devices, various kind of passive networking tools. So after that we are moving towards your layer 2 technology, which is nothing but your switching layer. Okay, and whenever we are completing layer 2 technology, you have to move towards your layer 3 technology, which is nothing but your routing. Okay, so today we are going to discuss a very important topic related to the switching layer. Okay, and these three protocols are very important, also very highly used in इंडस्ट्री. बेसिकली आप कोई भी कंपनी में जाओगे ना, ये जो तीन प्रोटोकॉल आज हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी छोटी बड़ी कंपनी, जितने भी कंपनी है, हर एक कंपनी में ये तीन प्रोटोकॉल मोस्ट प्रोबेबली यूज होते ही होते हैं. ओके, ऐसा नहीं कि दोनों ही प्रोटोकॉल एट टाइम, जैसे सी डी पी एल एल डी पी दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है. ऐसा नहीं कि दोनों ही चल रहे होंगे, हो सकता है कोई एक चल रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, काम करने की तरीका दोनों की सेम है. बस आपको समझना है क्यों यूज में कर रहा हूँ, अगर ये ना होता देन प्रॉब्लम क्या होता और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है. Okay, out of that, in our upcoming session we are going to discuss a very important topics, the basic configuration of a network switch. बेसिकली हम आपको एक रियल नेटवर्क स्विच के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे और देखेंगे आपके पास लेट्स से एक नया स्विच है, बिल्कुल ही फ्रेश स्विच आपने मार्केट से खरीदा या फिर आपकी कंपनी में आया, आप कैसे कैसे कौन सी स्टेप से होते हुए उस स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसे नेटवर्क में लाइव करोगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशन. सो टुडे आवर मेन फंक्शन इज, और मेन कॉन्सेप्ट इज दिस थ्री प्रोटोकॉल. Okay, Rajat, got it? Okay, having query about your previous classes, previous class में कोई भी concept है, कोई भी doubts है, then you can ask. Okay, so today we are going to discussing, as I said, today we are going to discuss three protocols. Okay, CDP, LLDP and DTP. Having about have you ever hear about these protocols? आपने कभी सुना इन तीनों प्रोटोकॉल के बारे में? ओके, गुड. सो देखो, तीनों प्रोटोकॉल ये जो है ना, इनमें से जो सी डी पी और एल एल डी पी, ये दो प्रोटोकॉल सिमिलर काइंड है. ऐसे कह सकते हो ये एक ही माँ की दो बेटे हैं, सिंपल सा काम करते हैं. ये सी डी पी जो काम करता है, एल एल डी पी आपका बिल्कुल सेम काम करता है. लेकिन फिर अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर सर सी डी पी से मेरी सेम काम हो रहा है, देन व्हाई वी हैव एल एल डी पी. अगर एल एल डी पी से मेरी सेम काम हो रहा है, देन सी डी पी क्यों है. सो वो चीज़ को भी हम देखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो, पहले हम देख रहे हैं क्या. Okay, introduction to network discovery and trunking protocols. First of all, डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल. जो हमारे पास तीन प्रोटोकॉल मैंने आपको कहा, जिसमें से हमारे पास पहले प्रोटोकॉल क्या आ रहा है, पहला प्रोटोकॉल इज नथिंग बट योर सीडीपी. ये जो सीडीपी प्रोटोकॉल है, ये जो एलएलडीपी प्रोटोकॉल है, ये दोनों प्रोटोकॉल एक फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, व्हिच इज योर डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल. जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, लाइक रिप है, ओएसपीएफ है, आईएसआईएस है, बीजीपी है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल इनसाइड राउटिंग प्रोटोकॉल. वैसे ही आपने स्विचिंग प्रोटोकॉल सुना होगा, स्विचिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपके बिलोंग्स करते हैं, लाइक आपकी एसटीपी फॉल करता है, सीडीपी फॉल करता है, एलएलडीपी फॉल करता है. मतलब उनकी ग्रुप एक है,
पेरेंट है क्या, जैसे एक माँ की मल्टीपल, एक पेरेंट्स की मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं, सेम थिंग्स यहाँ पे भी है। जो उनकी पेरेंट प्रोटोकॉल है ना, दिस इज डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसके अंदर दो प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, वन इज सीडीपी एंड अदर इज एलएलडीपी। समझ में आया अभी तक रजत? मतलब एक आपके मैन है, जो आपके प्राइमरी है, दिस इज डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये तो मैन है, उस ग्रुप है, डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल एक ग्रुप है। इसके अंदर आपको दो प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, वन इज सीडीपी एंड अदर इज एलएलडीपी। क्लियर? ओके। अभी क्या कर रहा है, सीटीपी एंड एलएलडीपी एनेबल डिवाइस टू शेयर आइडेंटिटी एंड कनेक्टेड डिवाइस ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई द नेटवर्क मैपिंग। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, पहले आप ये चीज को समझो, जो सीटीपी है, जो एलएलडीपी है, इनका माँ और बाप एक ही है। मतलब इसकी पेरेंट्स जो है वो एक ही है, विच इज डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं डीडीपी भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स में आपको दिखने को भी मिलेगा डीडीपी। ओके। अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट फॉरगेट माई ड्राइंग बुक्स एक्चुअली, इसलिए मैं माउस से ही कर रहा हूँ, सो थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग खराब हो सकता है बॉस, तो उसके लिए ध्यान मत देना। ओके। सो डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल के अंदर आपको दो प्रोटोकॉल मिलते हैं, वन इज सीडीपी एंड अदर इज एलएलडीपी। इन दोनों का काम सिंपल है। अब काम क्या है सर? काम सिंपल सा है कि इसके साथ, जैसे मेरे पास लेट्स से डिवाइस वन है, ये एक डिवाइस है। ओके। इस डिवाइस के साथ और कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है वो आपको बताना। जैसे मैं हूँ, ओके, आई एम हियर, मेरे ऑफिस के पास और कौन सी ऑफिस है, मैं वो आपको बता सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर कौन सी चीज़ होना चाहिए, मेरे अंदर सीडीपी या फिर एलएलडीपी अगर ऑन रहेगा या फिर एनेबल रहेगा, देन मैं आपको बता सकता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है। लेट्स से आपके पास कोई एक स्विच कनेक्टेड है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पीपीटी ओपन करके मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बिकॉज आई जस्ट फॉरगेट माई नोटबुक्स, सॉरी पेन, राइटिंग पेन्स। ओके। देखो, जैसे ये आपकी एक स्विच है, लेट्स से इस स्विच की आईपी है 10.0.0.10। ओके। इस स्विच के साथ आपने और एक स्विच को यहाँ पे कनेक्ट किया, दिस इज ए सेकेंडरी स्विच 192.168.80.10। ओके। अब ये दो स्विच आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों स्विच को हमने आपस में ऐसे कनेक्टेड कर दिया। ओके। ये दोनों स्विच आपके क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए। अब ये दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है, ये जो 10.10.0. ये लेट से इसको मान लो आप स्विच वन, स्विच वन, और इसको सेम थिंग आप यहाँ पे मान लो स्विच टू। अभी स्विच टू को कैसे पता चलेगा कि अभी जैसे आपने स्विच वन को लॉगिन किया, स्विच वन के अंदर आप कैसे पता लगा सकते हो कि स्विच वन और किस स्विच के साथ कनेक्टेड है? मतलब आपके नेबर डिवाइस कौन है वो आपको पता कौन सकता है, एलएलडीपी या फिर सीडीपी बता सकता है। दोनों प्रोटोकॉल आपके पास अवेलेबल है, आपके पास बहुत सीडीपी भी है, बहुत एलएलडीपी है। अब दोनों से ही पता लगा सकते हो कि मेरे डिवाइस के साथ, लेट्स से मेरे पास एक स्विच है, उस स्विच से और कौन सी स्विच या फिर राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, आप वो पता लगा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस सीडीपी एंड एलएलडीपी। देखो, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सीडीपी और एलएलडीपी दोनों सेम है। ओके। लेकिन दोनों सेम है तो दोनों की फिर यूज क्या है? देखो, सीडीपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सेम एलएलडीपी का फुल फॉर्म होता है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो मैं आगे बताऊंगा। ओके। उसके बाद आपके पास जो आता है, दिस इज योर डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल विच इज योर डीटीपी। हमने तीन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा। सीटीपी तो आपको थोड़ी बहुत पता चल गया, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। एलएलडीपी होता है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ओके। इन दोनों का काम है आपके नेबर डिवाइस को बेसिकली आइडेंटिफाई करना। आप किसी और बंदे के, जैसे रिलेशनशिप में आप हो, तो आपको आपकी लेट्स से आपकी गर्लफ्रेंड है, आप किसी और लड़की के साथ बेसिकली बातचीत कर रहे हो, तो आपको गर्लफ्रेंड को कैसे पता चलेगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस योर मोबाइल फोन, योर आईफोन, जो भी हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से पता चल सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है। लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक स्विच यहाँ पे है और इस स्विच के साथ और 5 स्विच कनेक्टेड है। ओके। और आपस में आप पता कैसे लगाओगे? आपने इस स्विच को लॉगिन किया, अब इस स्विच में बैठे हुए आप कैसे पता लगा सकते हो कि मेरे साथ और कितने स्विचेस कनेक्टेड है, या फिर राउटर कनेक्टेड है, या फिर नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ सीडीपी और एलएलडीपी। बट डीटीपी जो होता है, डीटीपी होता है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली डीटीपी ऑटोमेट द decision to convert a link into trunk कैरी मल्टीपल VLAN और इंडियंस कॉन्फ़िगरेशन एफिशिएंसी। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्मली दो तरीके के इंटरफेस होते हैं। ओके। हालांकि हमने तीन तरीके के पढ़े थे, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट और हाइब्रिड पोर्ट। ओके। उनमें से हमने एक चीज पढ़ा था, एक्सेस पोर्ट में क्या होता है, सिंगल VLAN कैरी होता है एट ए टाइम। ट्रंक VLAN में क्या होता है, जो ट्रंक इंटरफेस होता है उसके अंदर मल्टीपल VLAN आप कैरी करा सकते हो। ओके। 10-50 VLAN है, जितने भी VLAN है आप एट ए टाइम कैरी कर सकते हो उसके साथ। बट एक्सेस पोर्ट में एट ए टाइम एक ही VLAN आपका कैरी होगा। यही पढ़ा था रजत हमने। ओके।
सो बेसिकली डीटीपी क्या करता है, जो पोर्ट आप बनाओगे, लेट्स से आपने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया तो वो तो एक्सेस बन गया, बट अगर आप एक पोर्ट को, एक लेट्स से इंटरफेस है गिग 0/1, एक नंबर पोर्ट है, एक नंबर पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाओगे, कैसे बनाओगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस डीटीपी प्रोटोकॉल आप उसे बनाओगे, कैसे बनाओगे वो आगे मैं बताऊंगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, बेनिफिट क्या है इनका, बेनिफिट सिंपल सा है, अगर आपके पास लेट्स से कोई नहीं है, आपकी स्विच, आप एक स्विच में लगे हो, स्विच के साथ और कौन से स्विच कनेक्टेड है आपको पता ही नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल जाओगे, फिजिकल जाके चेक करोगे, वही चीज़ टाइम टेकिंग मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। यस रजत। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली बेनिफिट क्या है, इंप्रूव मैनेजमेंट स्पेशली लार्ज, अगर आपके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, छोटे छोटे कंपनी में तो अभी भी ये यूज होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो प्रोटोकॉल बने हुए थे बड़े बड़े नेटवर्क के लिए बने हुए थे। ओके, लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें आपको ऑटोमेशन कुछ करनी है, तो दीज आर द लिटिल बिट ऑटोमेशन, छोटे छोटे ऑटोमेशन की प्रोटोकॉल्स हैं। अगर पहले लेट्स से आपको पता नहीं था एक स्विच से दूसरा स्विच कहाँ से कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड था, एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्टेड है भी नहीं है, या फिर एक स्विच से क्या क्या डिवाइस कनेक्टेड है, पहले आपको फिजिकली ढूंढना पड़ रहा था, बट बाय द हेल्प ऑफ दिस सीडीपी एलएलडीपी वो ऑटोमेट हो गया, आप एक स्विच को लॉगिन करोगे उसके अंदर आपको दिख जाएगा सब कुछ। और डीटीपी की मदद से एट ए टाइम आप मल्टीपल वीलान कैरी करा सकते हो, आपको मोर देन, जैसे आपके पास 5 वीलान है तो 5 वीलान के लिए 5 केबल आपको नहीं चाहिए, एक ही केबल की मदद से आप पांचों वीलान को बाईपास कर सकते हो। ओके, व्हाट इज सीडीपी, अब अच्छे से समझना, जहां पे भी समझ नहीं आ रहा तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, देन सीडीपी होता है, सीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है, दिस इज सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जैसे इसकी फुल फॉर्म ही कह रहा है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, मतलब जो सीडीपी प्रोटोकॉल है दिस इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। अभी दुनिया में जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल है वो दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मैंने कोई बुक लिखा, ओके, लेट्स से मैंने कोई नेटवर्क का कोई बुक लिखा, एक तो मैं जो बुक है उसकी कॉपीराइट बना सकता हूँ पब्लिक, पब्लिक अगर बना दिया तो कोई भी बंदा उस बुक को लिख सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। दूसरा होती है बेसिकली प्रोपरेटरी, प्रोपरेटरी का मतलब मैं उस बुक की जो किताब रहेगी ना उसको अपने नाम से एज ए एडमिन, एज ए राजेश शाहू, मैं अपने नाम से उसे पेटेंट कर दूंगा, मतलब उस बुक को अगर कोई फिर से लिखेगा या फिर कॉपीराइट करेगा देन मैं उसे लीगल एक्शन ले सकता हूँ उसके ऊपर। तो सेम चीज यहाँ पे है, जो सीडीपी होती है ना, सीडीपी इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल इन द सेंस, अगर आपके पास सिस्को की डिवाइस है, लाइक आपके पास सिस्को की स्विचेस है, सिस्को की राउटर्स है, सिस्को की फायरवॉल है, देन यू कैन यूज सीडीपी प्रोटोकॉल। ओके, अगर आपके पास सिस्को की ही डिवाइस है देन यू कैन रन द सीडीपी प्रोटोकॉल, अदरवाइज यू कैंट रन द सीडीपी प्रोटोकॉल, वहां पे आपको मिलेगा ही नहीं वो ऑप्शन। लेट्स से जैसे आपके पास जूनिपर की डिवाइस है तो जूनिपर के अंदर आप सीडीपी को रन नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास सिस्को की कोई डिवाइस है उसके अंदर आप सीडीपी भी चला सकते हो, उसके अंदर आप एलएलडीपी भी चला सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि जो सीडीपी प्रोटोकॉल है दिस इज सिस्को प्रोप्राइटरी, उसकी जो पूरी की पूरी लाइसेंस है सीडीपी प्रोटोकॉल की वो सिस्को के पास है, अगर कोई दूसरी कंपनी उसे यूज करेगा देन सिस्को कैन लीगली टेक सम एक्शन। बट जो दूसरी है अदर हैंड में जो हमारे पास दूसरी प्रोटोकॉल है विच इज एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, दिस इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इन द सेंस हर कोई उसे यूज कर सकता है, कल को आप आपने कोई नया डिवाइस बनाया उसके अंदर आप चाहो तो एलएलडीपी को यूज कर सकते हो, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीडीपी यूज करना चाहते हो देन आपको सिस्को को जाके बोलना पड़ेगा कि मेरे पास एक नया डिवाइस है, मैं उसके अंदर सीडीपी यूज करूंगा और वो डिवाइस जो है वो सिस्को की डिवाइस नहीं है, देन अगर सिस्को ने अलाउ किया देन यू कैन यूज, अदरवाइज यू कैंट, और उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। ओके, सो दुनिया में जितने तरीके की प्रोट, यस रजत। हम्म हम्म नहीं, लेट्स से आपकी कंपनी में क्रॉस प्लेटफॉर्म की डिवाइसेस है, दो दो डिवाइस जूनिपर की है, 4 डिवाइस पालोल्डो की है, 2 डिवाइस सिस्को की है, तो उस केस में आप ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे विच इज एलएलडीपी, सारे स्विचेस में जो प्रोटोकॉल मिलेगा, और सारे स्विचेस में कौन सी प्रोटोकॉल मिलेगा आपको, एलएलडीपी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ओपन स्टैंडर्ड होता है, कोई भी डिवाइस हो कोई भी वेंडर हो उसके अंदर आप चला सकते हो। ओके, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ,
जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक रियल स्विच भी लॉगिन करके दिखाऊंगा। हालांकि वो स्विच आपको दिखेगा सिस्को का, लेकिन उसके अंदर एलएलडीपी चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्को की लेट्स से आपकी कंपनी में आज तो सिस्को की स्विचेस चल रहे हैं, हो सकता है कल को आपने कोई दूसरा वेंडर की डिवाइस लगा दिया, तो उस केस में उस जो दूसरा वेंडर जो आएगा, लेट्स से जूनिपर की स्विच आपने लगा दिया, उसमें तो आप सीडीपी नहीं चला सकते, तो उसके अंदर आप एलएलडीपी लगाओगे। तो इसलिए पूरी एनवायरनमेंट में जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उसमें एलएलडीपी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ओके। हालांकि बात सिंपल सा है, जो सीडीपी है वो है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, वो सिस्को की अपना प्रोटोकॉल है, सिस्को वालों ने ही उसे बनाया, दूसरी कोई कंपनी उसे यूज नहीं कर सकता। बट एलएलडीपी जो है उसे एक ओपन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, कोई भी बंदा कोई भी वेंडर उसे यूज कर सकता है, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वो जूनिपर हो, चाहे वो पालो हो, चाहे वो चेक पॉइंट हो, कोई भी उसे यूज कर सकता है। समझ में आया? ओके। तो सेम चीज यहाँ पे करा है, सीटीपी स्टैंड फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सीटीपी अलाउ सिस्को डिवाइसेस टू शेयर बेसिक इंफॉर्मेशन विथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर ऑटोमेटिकली ओवर लेयर टू। इनका काम क्या होता है? सीटीपी जो होता है, लेट्स से आपके पास एक स्विच, लेट्स से इसको मान चलो, ये आपके पास एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप का लेट्स से लैपटॉप नहीं, ऐसे ले चलो आप एग्जाम्पल, लेट्स से ये एक सिस्को की स्विच है, दिस इज ए सिस्को स्विच, दिस इज ए सेकंड सिस्को स्विच। तो ये दोनों के बीच बेसिकली आपस में डेटा को शेयर करेगा। कौन सी टाइप की डेटा? ये जो स्विच कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड है, इसकी आईपी एड्रेस क्या है, इसकी आईएसओ की वर्जन क्या है, इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, लेयर टू की इन्फॉर्मेशन वो ये स्विच वन स्विच टू को देगा, और स्विच टू क्या करेगा, स्विच वन को देगा। ये सिंपल सा काम रहते हैं दोनों के बीच, मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा फिजिकल। ओके। उसके बाद डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, डिवाइस अनाउंस डिटेल्स लाइक टाइप, जैसे मैंने कहा टाइप भी बताएगा कि कौन सी डिवाइस है, वो राउटर है, स्विच है, हब है, बताएगा। सॉफ्टवेयर वर्जन बताएगा, आईपी एड्रेस बताएगा, एंड फॉर इजी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, जब कभी ट्रबल शूटिंग आप करोगे तो रियल टाइम में आप जाकर फील्ड में चेक नहीं करोगे कि इस डिवाइस से कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, या फिर इस स्विच से कौन सी स्विच कनेक्टेड है। अब एक स्विच में लॉगिन लोगे, उस स्विच से कौन सी स्विच कनेक्टेड है, आप उसी के कंसोल की मदद से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ओके। एज यू कैन सी दिस इज माई कंसोल। ओके। इसके अंदर लेट्स से आई जस्ट डू टेलनेट, मैं इसके अंदर कोई एक मेरे पास स्विच पड़ा हुआ है रियल में, तो उसके अंदर लेट्स से मैंने लॉग इन ले लिया। ओके। ओके। ये कोई एक कंपनी की स्विच है, इसके अंदर मैं करूंगा सो एल एल डी पी नेवर। देखो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है एल एल डी पे इतने चल रहे हैं। अगर इसके अंदर मैं सो सी डी पी नेवर करूंगा, देखो मुझे क्या आ रहा है, सी डी पी इज नॉट एनेबल्ड। हालांकि ये सिस्को की स्विच है, अगर मैं आपको दिखाऊँ सो वर्जन, दिस इज ए सिस्को स्विच, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। लेट मी आज सो यू, देखो दिस इज ए सिस्को स्विच। ओके। कैसे पता चल रहा है आपको ये सिस्को स्विच है रजत? दिस इज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्को 920048 वोल्ट की स्विच है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 100 सीडीपी मैं नेवर करूंगा, सीडीपी यहाँ पे ऑन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, हो सकता है वो जूनिपर की हो या फिर दूसरी वेंडर की हो। ओके। और जैसे एलएलडीपी की मैंने बात किया, एलएलडीपी के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बेसिकली ये कह रहा है क्या, ये जो तुम्हारी स्विच है, ये 4 नंबर पोर्ट इसकी, देखो बता रहा है 4 नंबर पोर्ट जो है ये एक ब्रीज से कनेक्टेड है, और कौन सी उस जो सेकंड डिवाइस है उसकी पोर्ट नंबर आपको बता रहा है उसकी 4 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए देन आप लगाओगे यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देगा। डिटेल्स में क्या क्या देगा आपको, यहाँ पे बताएगा उसकी आईपी एड्रेस क्या है, लेट मी सो, देखो यहाँ पे आपको बता रहा है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, उसकी सीरियल नंबर क्या है, उसकी आईएसओ की वर्जन क्या है, वो पूरी डिटेल्स आपको वो बताएगा। ओके। इन सिमुलेटर में आपको सिमुलेटर में भी दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, बट अभी के लिए अब जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आपके पास एल आपने ऑन कर रखा है अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर, सो आपको हर एक डिवाइस में जाकर चेक करना नहीं है कि इस एक नंबर पोर्ट दूसरी एक स्विच से कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड है, वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल एक डिवाइस को लॉगिन करो, और जो एल पे चल रहा होगा या फिर सी पे चल रहा होगा, उसके मदद से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। जो दूसरा डिवाइस है उसके पेरेंट डिवाइस जो नेवर डिवाइस है उसकी सीरियल नंबर क्या है, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, उसकी वर्जन क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अपनी नेवर जो आपके साथ जो कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आप रखते हो, अपनी डिटेल्स उसको देते हो। समझ में आया रजत क्या काम करता है बेसिकली? ओके। देन नेटवर्क एफिशिएंसी, सीडीपी स्पीड अप ट्रबल शूटिंग एंड टोपोलॉजी मैपिंग, रिड्यूसिंग द नीड
फॉर मैनुअल इंस्पेक्शन ऑफ लार्ज नेटवर्क। लेट से आप सोच के चलो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है आपके पास, जहाँ पे 50 या फिर 60 स्विच आपके कंपनी में है और सारे स्विच आपस में कनेक्टेड है, ओके, या फिर कोर स्विच से कनेक्टेड है सारे स्विच। अगर आपको कल को कोई इशू आ गया कि आप हर एक स्विच के पास जाके देखोगे कि यार ये स्विच कितने नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है, वो स्विच कितने नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है, या फिर इस स्विच की वर्जन क्या है, उस स्विच की आईएसओ वर्जन क्या है, नहीं करना वो सब। क्यों? क्योंकि आपके पास सीडीपी है या फिर एलएलडीपी है। अभी हालांकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी मान के चलो आपकी कंपनी में हमने सीडीपी ऑन कर रखा है। तो सिंपली आप कोर स्विच को लॉगिन करोगे, सो सीडीपी नेबर डिटेल्स करोगे, उसके अंदर कमांड होती है जो मैं आगे आपको बता दूंगा। जैसे आप कमांड लगाओगे ना, आपकी एक स्विच में बैठे बैठे आपको सारे स्विच की डिटेल्स आपको मिल गया कि उसकी आईएसओ क्या है, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड है, सब कुछ आपको एक स्विच के ऊपर मिल जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लो। लेट्स से दिस इज योर कोर स्विच, ये आपकी कोर स्विच है। हालांकि मैं इसे प्रैक्टिकल करके और भी अच्छे से आपको दिखाऊंगा। कोर स्विच है आपके पास, एक L2 स्विच कनेक्टेड है, दिस इज अ सेकंड L2 स्विच, देयर आर लॉट्स ऑफ L2 स्विचेस आर कनेक्टेड, ओके। मैं हालांकि अभी दो ही L2 स्विच यहाँ पे बना रहा हूँ, आप मान के चलो आपके पास 50-60 L2 स्विचेस यहाँ पे कनेक्टेड है कोर स्विच से। इस कोर स्विच से 50-60 L2 स्विचेस कनेक्टेड है। सो नॉर्मली क्या होगा, अगर इसकी कुछ आईएसओ वर्जन आपको चेक करनी है, या फिर इस स्विच की आईएसओ वर्जन चेक करना है, पोर्ट नंबर चेक करना है, अपलिंक कौन सा है या फिर अपलिंक कौन सा इसमें है, देन आप क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, इस स्विच के पास जाएंगे, इसको चेक करेंगे, फिर इस स्विच की लॉगिन करेंगे, इस स्विच की चेक करेंगे, फिर इस स्विच को लॉगिन करेंगे, फिर चेक करेंगे। बट अभी हमारे पास क्या है, एलसीडीपी है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इस स्विच के ऊपर सीडीपी को रन कर दूंगा। सेम इन तीनों स्विच के ऊपर मैं सीडीपी को रन कर दूंगा, इसके ऊपर भी सीडीपी को रन कर दूंगा, इसके ऊपर भी सीडीपी को रन कर दूंगा, ओके। जैसे ही मैं सीडीपी को रन करूंगा, मैं कोर स्विच में लॉगिन करूंगा और सिंपली जाकर चेक करूंगा सो सीडीपी नेबर मेरी कौन सी सीडीपी नेबर है। सो सीडीपी नेबर जैसे ही, नेबर डिटेल्स जैसे ही चेक करूंगा, कोर स्विच में बैठे हुए मुझे इस स्विच की पूरी डिटेल्स और इस स्विच की पूरी डिटेल्स मिल जाएगा कि इसकी आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है, इसका आईएसओ वर्जन क्या है, इसकी आईएसओ वर्जन क्या है, इसकी सीरियल नंबर क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसकी अपलिंक कौन सी है, इसकी अपलिंक कौन सी है। सो मैनुअल यहाँ पे हर एक स्विच को आपकी लॉगिन करने की जरूरत अभी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे पास सीडीपी था। आया समझ रजत? हम्म हम्म हम्म। नहीं निकाल सकते आप, बी को फिर लॉगिन करोगे उस केस में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, ओके। और इसमें एक चीज़ होती है, वही चीज़ डिफ़ॉल्ट टाइमर, टाइमर होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैं 100 LLDP नेवर भी करूँगा ना, यहाँ पे देखो टाइमर चलता है। अब टाइमर क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइमर अभी हम इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब हम सिमुलेटर पे जाएंगे, चाहे सिस्को पैकेट ट्रेसर हो या फिर एनी अदर सिमुलेटर, वहाँ पे टाइमर में आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि टाइमर की एक्चुअल यूज केस आप वहाँ पे समझोगे। लेकिन आप ये समझ के चलो, टाइमर का काम होता है कि हर 120 सेकंड के बाद वो डेटा को फिर से भेजेगा, एलएलडीपी के ट्रैफिक को इनिशिएट करेगा। अभी के लिए इतना मानो, बट प्रैक्टिकल में आपको ये दिखाऊंगा, ओके। तो सीडीपी में कोई डाउट है रजत? ओके। हाँ, बाई डिफॉल्ट होता है 60 मिनट 60 सेकंड, बट आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ओके। जैसे लेट से अभी मैंने हाँ, लेट से अभी मैंने चेक किया कोर पे कि मुझे मिल रहा है एक नंबर पोर्ट से मेरी एक स्विच कनेक्टेड है, और अभी डेटा आपको दिख रहा है, फिर वो स्विच डाउन हो गया तो आपको तुरंत नहीं दिखेगा, 60 बाई डिफॉल्ट 60 सेकंड के बाद ही दिखेगा कि वो इंटरफेस डाउन हुआ है, ओके। दिस इज द डिफॉल्ट डायग्राम। उसके बाद आता है व्हाई सीडीपी यूज केस बेसिकली, ओके। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सीडीपी इन नेटवर्क्स, क्विक डिवाइस कनेक्टिविटी। जैसे सीडीपी किसका प्रोटोकॉल है, सिस्को का प्रोटोकॉल है, तो अगर आप सीडीपी का एक्चुअल यूज उठाना चाहते हो या फिर सीडीपी का एक्चुअल लाभ आप उठाना चाह रहे हो, सीडीपी की एक्चुअल एडवांटेजेस आप उठाना चाह रहे हो, देन अगर आपके पास सिस्को की डिवाइस है, देन आप अच्छे से इसे यूज कर पाओगे। वही सेम चीज़ कह रहा है,
Quick device connectivity inside CDP allow engineers to quickly see how devices connect without manual check, saving valuable troubleshooting time. जब कभी आप ट्रबल शूटिंग में फंसते हो, आप जाके एक एक स्विच में चेक नहीं करते कि यार इसकी आईपी क्या था, ये किससे कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड था। आउट ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक स्विच को लॉगिन करो, उसके अंदर चेक कर लो 100 सीडीपी नेबर, उसकी आईपी मिल जाएगा, वर्जन मिल जाएगा, जो आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए जो जो चीज़ें आपको मोस्ट प्रोबेबली चाहिए वो आपको सीडीपी से मिल जाएगा, जिसके मदद से आपकी ट्रबल शूटिंग फास्टर हो पाएगी। ओके, देन ट्रबल शूटिंग एंड डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। सीडीपी की मदद से आप अपने नेबर डिवाइस के क्या क्या देख सकते हो, आईपी एड्रेस देख सकते हो, मॉडल देख सकते हो, इंटरफेस देख सकते हो, एंड मिस कन्फिग्रेशन है, पोर्ट मिस कन उस कौन से पोर्ट से कन्फिगर है। लेट्स से आपने कहा कि 4 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर आपकी साइड इंजीनियर को, हो सकता है साइड इंजीनियर 10 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर दिए, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, देन रियल टाइम नेटवर्क अपडेट। जो सीडीपी होता है ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन ए न्यू डिवाइस कनेक्टेड। जब कभी आप सिस्को की नया स्विच लगाते हो ना, तो उसमें बाय डिफॉल्ट सीडीपी ऑन रहता है। अगर सिस्को की कोई भी स्विच हो, राउटर हो, जब कभी आप सिस्को की बाय डिफॉल्ट एक स्विच, राउटर या फिर नेटवर्क डिवाइस सिस्को की कंपनी की लगाते हो, बाय डिफॉल्ट उसमें सीडीपी ऑन रहता है, आपको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो नहीं मैं सीडीपी यूज नहीं करूंगा, मैं एलएलडीपी यूज करूंगा, देन यू हैव टू मैनुअली एनेबल द एलएलडीपी। ओके, बट बाय डिफॉल्ट सीडीपी ऑन रहता है सिस्को की डिवाइस में। सो बस आप प्लग इन प्लग आउट कर दो, जैसे ही आप अपलिंक कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपके कोर स्विच में या फिर आपके ऊपर अपर डिवाइस में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नया डिवाइस कनेक्ट हुआ है। देन सपोर्ट फॉर डिवाइस अपग्रेड। सीडीपी मैप्स ओल्ड डिवाइस कनेक्ट गाइडिंग करेक्ट रिकनेक्टिंग ड्यूरिंग द नेटवर्क अपग्रेड एंड रिप्लेसमेंट। इसका मतलब सिंपल सा है। ओके, इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे लेट्स से सीडीपी के साथ आपने आज एक डिवाइस कनेक्ट किया। ओके, 50 डिवाइस कनेक्ट किए, उसके मदद से आप पता लगा सकते, सीडीपी की मदद से आप पता लगा सकते हो जो 50 मेरी स्विचेस है या फिर डिवाइस है, कौन सा पुराना स्विचेस है, कौन सा नया स्विच है। कैसे? क्योंकि सीडीपी आपको मॉडल नंबर भी बताता है, सीरियल नंबर भी बताता है। गॉट इट रजत? हैविंग एनी डाउट अबाउट सीडीपी? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन व्हाट इज एलएलडीपी? देखो सीडीपी जो है, एलएलडीपी वही सेम है, दोनों के बीच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है आपके पास। ओके, लेकिन थोड़ी सी हल्का फुल्का जो स्लाइडली डिफरेंस है, दिस इज द डिफॉल्ट टाइमर। सीडीपी में टाइमर था बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बात किया, अभी मैंने बात किया फिर बात को बंद किया, फिर 60 सेकंड के बाद जाकर मैं आपको बात पूछूंगा कि समझ आया या नहीं आया। लेकिन एलएलडीपी में 30 सेकंड के बाद पूछूंगा, मतलब एलएलडीपी जो होता है थोड़ी सी फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू सीडीपी। ओके, लेकिन आउट ऑफ दैट एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों के बीच, व्हिच इज नथिंग बट योर सीडीपी जो होता है, दिस इज सिस्को प्रोप्राइटरी, बस सिस्को डिवाइस में आप यूज कर पाओगे। बट एलएलडीपी जो होता है, दिस इज ओपन स्टैंडर्ड, चाहे आपके पास सिस्को की डिवाइस हो, चाहे आपके पास कोई दूसरी ब्रांड की डिवाइस हो, यू कैन यूज दैट। ओके, देन यूटीपी का एलएलडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अगेन full form is very much important guys, you have to remember the full form। okay, link layer discovery protocol, this is a layer 2 protocol। जैसे सीडीपी आपका एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, वैसे ही एलएलडीपी आपका एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ओके, देन उसके बाद आता है ओपन स्टैंडर्ड डिवाइस डिस्कवरी। जैसे मैंने आपको कहा था सीडीपी आपका है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सिस्को प्रोप्राइटरी है, मतलब सिस्को वालों ने ही उससे बनाया, बस सिस्को के लिए ही बनाया है उसको। लेकिन जो एलएलडीपी है, दिस इज ओपन स्टैंडर्ड। अब चाहे सिस्को में चलाओ, चाहे कोई दूसरी ब्रांड में, जूनिपर चलाओ, नोकिया में चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से वो काम करेगा। ओके, एलएलडीपी इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू डिस्कवरी एंड आइडेंटिफाई नेबर डिवाइस अक्रॉस द मल्टीपल वेंडर। कोई भी वेंडर की डिवाइस हो, सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, या फिर नेबर डिवाइस कौन सा है, वो आप कैसे पता लगा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस एलएलडीपी। सो बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर ऐसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं जो कि गलत है। वो क्या करते हैं, लेट्स से 2 डिवाइस सिस्को की है, उसमें सीडीपी चला देंगे, 4 डिवाइस एलएलडीपी से है, उसमें 4 डिवाइस आपकी जूनिपर में है, उसमें एलएलडीपी चला देंगे। अभी जब जो जूनिपर और सिस्को की डिवाइस के बीच कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे एलएलडीपी चला देंगे। सो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप सिस्को की ट्रैफिक सीडीपी की ट्रैफिक और एलएलडीपी की ट्रैफिक जब आप एक साथ भेजोगे, देन आपकी डिवाइस कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिवाइस ही आपकी कन्फ्यूज हो जाएगा, आपको सही से डाटा नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हर एक कंपनी में स्टैंडर्ड होता है कि हमारी कंपनी में सीडीपी चलेगा या फिर तुम्हारी कंपनी में एलएलडीपी चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, दे आर एडोप्टिंग एलएलडीपी, क्योंकि एक कंपनी में कभी भी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, एक वेंडर की डिवाइस कभी भी नहीं होते। चाहे हो सकता है आपकी सारे एक्सेस स्विच सिस्को की हो सकता है जो L3 स्विच हो वो जूनिपर का हो सकता है, या फिर आपकी फायरवॉल जो हो वो दूसरी कोई पालो अल्टो की फायरवॉल हो सकता है। ओके,
हर एक डिवाइस सेम नहीं होता, हो सकता है कि जो SD1 है वो नोकिया का हो सकता है, तो इसलिए वो एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को हमेशा यूज करते हैं, विच इज LLDP। अगर वो CDP को यूज करेंगे, वो L2 स्विच में तो उन्होंने CDP को यूज कर दिया, बट फायरवॉल में वो CDP उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल उन्होंने फायरवॉल पालो अल्टो की फायरवॉल लगा रखा है, तो उसी केस में फायरवॉल में जो पालो अल्टो फायरवॉल है उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, LLDP मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपके सारे नेटवर्क पे, पूरी की पूरी नेटवर्क में एक सिंगल प्रोटोकॉल रन करेगा, विच इज LLDP। आया समझ रहे? ओके। उसके बाद आपके पास है लेयर 2 ऑपरेशन। LLDP ऑपरेट एट लेयर 2। जैसे मैंने आपको कहा, हमारी जो आज की टॉपिक है दिस इज लेयर 2 प्रोटोकॉल्स। तो जो आपकी CDP LLDP है, ये दोनों आपके क्या है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है। एंड लेयर 2 इज नथिंग बट योर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ओके, डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की अगर बात करूँ ना, तो डेटा लिंक लेयर में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, so LLDP operate at layer 2 of OSI model, enabling device discovery regardless of IP addressing। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी LLDP है, CDP है, ये IP के बेस में काम नहीं करते, ये मैक एड्रेस के बिहाफ में काम करते हैं, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ कह रहा है, अगर आप स्विच में IP एड्रेस भी नहीं लगाओगे, लेट्स से आपके नेबर डिवाइस जो है, आपके स्विच 1 से जो स्विच 2 कनेक्टेड है, हो सकता है स्विच 2 में कोई IP एड्रेस ही ना डाला हो आपने, लेकिन फिर भी वो डिटेक्ट कर लेगा। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ दिस मैक एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये जो LLDP है, CDP है, दे आर जस्ट यूजिंग द मैक एड्रेस टू डिस्कवर द डिवाइस को, जो नेबर डिवाइस को डिस्कवर करने के लिए वो मैक एड्रेस को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस। व्हाई? बिकॉज दीज आर स्विचिंग प्रोटोकॉल, दीज आर लेयर 2 प्रोटोकॉल गाइस। ओके, उसके बाद आता है सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट। क्या फायदा है? LLDP हेल्प्स इंजीनियर टू मैप डिवाइसेस, कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई मिसकॉन्फ़िगर मल्टीपल वेंडर। जब आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली हर एक स्विच के पास, हर एक डिवाइस के पास आपको मैनुअली जाकर चेक करना होता है कि इससे कौन सी स्विच कनेक्टेड है, उससे कौन सी स्विचेस कनेक्टेड है, इनकी ISO क्या है, इनके ISO वर्जन क्या है, इनके मॉडल नंबर क्या है। तो उस केस में जो LLDP है, जो CDP है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रबल शूटिंग को ईजी करने के लिए। ओके, और CDP आपको वहाँ हेल्प करता है जहाँ सिस्को की एनवायरनमेंट, पूरी की पूरी सिस्को की एनवायरनमेंट है। लेट्स से आपके पास मल्टी वेंडर, और जिसको हम कहते हैं क्रॉस वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे सिस्को भी है और अदर वेंडर भी है, उस केस में LLDP आपको हेल्प करता है। ओके, देन सपोर्ट मॉडर्न डिवाइसेस। जो आपकी LLDP है, इसके अंदर आप मॉडर्न डिवाइस को भी वो सपोर्ट करता है। मॉडर्न डिवाइस इन द सेंस, अगर आप CDP के अंदर जाओगे ना, उसके अंदर आप IP फोन्स को नेबर में डिस्कवरी नहीं कर पाएगा वो, या फिर कोई एक नया डिवाइस है जैसे SD1 हो गया, उसको वो डिस्कवरी नहीं कर पाएगा। बट LLDP जैसे बात मैंने किया अभी, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये मेरी सिस्टम्स है, ये मेरी सर्वर्स है, छोटे छोटे सर्वर हमने लगा रखा है, उसको भी डिस्कवरी कौन कर पा रहा है? आपका CDP LLDP डिस्कवर कर पाया है। लेकिन सेम केस में अगर मैं यहाँ पे लगाऊं रन CDP, ओके सॉरी, अगर यहाँ पे मैंने CDP को एनेबल कर दिया, जैसे मैंने अभी बताऊंगा कैसे एनेबल होता है, क्या होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे CDP ऑन कर दिया, देखो CDP में ये दो चीज़ें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो CDP है वो बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है, बहुत इतना ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न डिवाइसेस है, आज की दुनिया की जो डिवाइसेस है, लाइक सर्वर हो गए, मॉडर्न डिवाइसेस हो गए, उनको CDP डिस्कवरी नहीं कर पाता, उनको CDP ढूंढ ही नहीं पाता। लेकिन LLDP को ढूंढ लेता है। यहाँ पे मैं आपको 100 CDP नेवर दिखाऊँ, देखो ये ढूंढ ही नहीं पा रहा अभी तक ये डिवाइसेस को। अभी कुछ समय दो इसको, ये स्विचेस को ढूंढ लेगा, बट वो जो डिवाइसेस है, जो नया डिवाइसेस है विच इज LLDP नेवर, इनको ये ढूंढ नहीं पाएगा, इन दोनों को वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, बट इन तीनों को वो ढूंढ लेगा। ओके, ओके, ये इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जो दूसरी सेकंड हैंड में जो स्विचेस है, मतलब इसकी जो नेवर डिवाइसेस है, उनमें भी CDP हमने बंद कर रखा है, इसलिए वो यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा। ओके, वो मैं आगे आपको सिमुलेशन भी बता दूंगा, डोंट वरी, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। हम सिमुलेटर में जब देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, लेकिन बात याद आप ये रखना, जो आपकी CDP होती है वो मॉडर्न डिवाइसेस को सपोर्ट ही नहीं करता। लाइक आज के टाइम पे हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, और एक्सेस पॉइंट तो चलो हो ही जाते हैं, जो आपके पास SD1 होते हैं या फिर सर्वर होते हैं, उसको बेसिकली आप CDP जो होता है डिस्कवर नहीं कर पाता, बट LLDP आपका कर पाता है। लाइक योर स्विचेस, मॉडर्न राउटर, मॉडर्न IP फोन्स, उनको बेसिकली LLDP डिस्कवर कर पाता है। और इसकी जो बाई डिफॉल्ट टाइमर जैसे मैंने आपको बताया, विच इज़ 30 सेकेंड। मतलब अगर आपने CDP को ऑन किया और एक स्विच में LLDP को ऑन किया, ओके, और दोनों में दिखा रहे हैं, अभी दोनों में ही स्विच आपको दिखा रहा था कनेक्टेड है, और वो स्विच अचानक से डाउन हो गया, तो LLDP के अंदर वो आपको 60 सेकंड के बाद पता चल, सॉरी CDP के अंदर वो आपको 60 सेकंड के बाद पता चलेगा, और LLDP में वो आपको 30 सेकंड के बाद पता चलेगा। मतलब
अभी लेट से मेरी कंपनी में कुछ हुआ इशू, ओके, और आप मेरे सुपरवाइजर हो, तो इशू होने के बाद मैं आपको 60 सेकंड के बाद बताऊंगा, ओके, एज ए सीडीपी। लेकिन सेम केस में अगर मैं एलएलडीपी हूँ, अगर इशू हुआ देन मैं आपको 30 सेकंड के बाद बताऊंगा। तो मतलब टाइम आपका पूरी की पूरी 30 सेकंड के गैप रहता है बाय डिफॉल्ट जो टाइमर चलता है। मतलब एलएलडीपी जो है वो 30 सेकंड के बाद नया पैकेट भेजेगा दूसरी डिवाइस को, बेसिकली डिस्कवर करेगा कि डिवाइस ऑन है या नहीं है क्या नहीं है। बट एल जो सीडीपी होता है वो 60 सेकंड के बाद जाकर डिस्कवर करेगा। गॉट इट रजत? ओके, ओके, अगर कोई भी डाउट है देन वी कैन आल्सो क्लियर इन अपकमिंग सेशन, जिसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, देन व्हाट इज व्हाई एलएलडीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेम थिंग जैसा सिस्को में था, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडवांटेजेस है, एक तो टाइमर के एडवांटेजेस है, दूसरा एडवांटेज है आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की डिवाइसेस के अंदर आप इसे चला सकते हो। ओके, तो पहले जो एडवांटेजेस है दिस इज क्रॉस वेंडर कंपेटिबिलिटी इन द सेंस, ऐसे नहीं कि आपके पास सिस्को सिस्को स्विच होना चाहिए एलएलडीपी को चलाने के लिए, नहीं। एलएलडीपी क्या कहता है भाई, कोई भी कंपनी की स्विचेस हो, कोई भी कंपनी की नेटवर्क डिवाइस हो, मैं उसके अंदर तो काम कर जाऊंगा। लेकिन सिस्को में क्या था, सिस्को कह रहा था भाई सिस्को की स्विच है तभी इसको चलाओ वरना आप चला नहीं पाओगे। ओके, तो एलएलडीपी एनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन अक्रॉस डिवाइस फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्किंग वेंडर्स लाइक सिस्को ओनली सीडीपी। जैसे सिस्को के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप सीडीपी चला सकते हो, ओके, चाहे तो आप एलएलडीपी चला सकते हो, लेकिन सिस्को के अंदर ही सिर्फ आप सीडीपी चला सकते हो। सिस्को के अंदर अगर आपके पास जूनिपर है उसके अंदर आप सीडीपी नहीं चला सकते, ओके। लेकिन उस प्रॉब्लम को एलएलडीपी ने सॉल्व किया। एलएलडीपी ने क्या कहा, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वो जूनिपर हो, चाहे वो अरूबा हो, चाहे वो दूसरा कोई नोकिया हो या फिर एवर्सा डिवाइस हो, उसके अंदर काम करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन नेटवर्क, जैसे आप इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई एक लड़ से हेल्प डेस्क वाले को अपने इंजीनियर बैठा है, कोई एक हेल्प डेस्क की बंदा है, अगर वो कह रहा है मैं बस सिस्टम के साथ ही काम करूंगा, मैं बस आउटलुक अगर इशू आएगा तभी मैं इशू सॉल्व करूंगा, कल को अगर कहीं दूसरा इशू आएगा देन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे, लेट्स से यू आर ए नेटवर्क है, कल कल आपको कहीं लेट्स से कल जाके आपकी प्लेसमेंट हुआ, आपको जो आप अच्छी खासी एक जॉब लग गया, जैसे आप कंपनी में जाओगे वहाँ पे लेट्स से कल जाने के बाद कोई सर्वर रिलेटेड इशू आया, ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं बस नेटवर्क ही देखूंगा, मैं सर्वर क्यों देखूँ, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ओके, तो बहुत सेम चीज़ सिस्को सीडीपी कह रहा था। सीडीपी क्या कह रहा था, अगर सिस्को की स्विच है देन मैं काम करूंगा, फिर सिस्को की डिवाइस है तब भी मैं काम करूंगा। लेकिन एलएलडीपी ने क्या कहा, भाई मैं सर्वर भी देख लूंगा, मैं राउटर भी देख लूंगा, मैं स्विच भी, मतलब एक बंदा सारे डिवाइस के अंदर वो काम कर पाएगा अभी। ओके, Network topology discovery LLDP provide detailed information about device role, connected port and compatibility, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, मीनवाइल अभी और एक बार दिखा दूंगा। ओके, VoIP एंड LLDP, तो बेसिकली जो आपकी LLDP है ये थोड़ी मॉडर्न डिवाइस को सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पे। जैसे आपके पास सर्वर्स है, बायोमेट्रिक्स है, इनको भी सपोर्ट कौन करता है आपके पास, LLDP आपका सपोर्ट करता है। लेकिन CDP आपका वो बायोमेट्रिक हो गया फिर दूसरी कोई डिवाइस है उसको सपोर्ट नहीं करता। ओके, देन सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग, LLDP रिड्यूस मैनुअल एरर्स, वही सेम चीज, इसके मदद से आपने क्या किया, आप क्या कर पाओगे, मैनुअल एफर्ट आपका खत्म हो गया, एक स्विच में बैठे बैठे आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी आप देख पाओगे कि मेरी नेबर डिवाइस की आईपी क्या है, वर्जन क्या है, मॉडल क्या है, वो पूरी चीज आपको पता चल जाएगा। ओके रजत, गॉट इट? हम्म, अगर एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है देन शो करेगा, लेकिन जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उसके लिए नहीं दिखाएगा। वो तो दिखा देगा, वो तो इंटरफेस बेस में दिखाएगा ना। हाँ मॉडल दिखा, हाँ मॉडल दिखाएगा, सीरियल नंबर दिखाएगा, उसकी आईएसओ वर्जन दिखाएगा, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है वो भी दिखाएगा। ओके, उसके बाद सीडीपी एंड एलएलडीपी के बीच थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। ओके, प्रोटोकॉल कंपेटिबिलिटी, सीडीपी वर्क एक्सक्लूसिवली ऑन सिस्को डिवाइस, जो आपकी सीडीपी होता है वो बस
सिस्को डिवाइस के साथ ही काम करेगा, लेकिन जो LLDP है वो मल्टी वेंडर को सपोर्ट करता है, मल्टीपल डिवाइस की वेंडर के साथ वो काम कर पाएगा, लाइक CDP, टेक, सिस्को, जूनिपर, अरुवा, नोकिया, वर्सा, सारे डिवाइस जितने भी नेटवर्क की वेंडर है वो सबके साथ काम कर पाएगा। इंफॉर्मेशन शेयर, बोथ CDP एंड LLDP शेयर डिवाइस इंफॉर्मेशन लाइक नेम, पोर्ट ID, सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड कंपेटिबिलिटी ऑफ नेटवर्क। दोनों का काम ही क्या है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन नेबर को शेयर करना। मैं आपको शेयर करूंगा, आप मुझे शेयर करना। क्या शेयर करूंगा, मैं आपको शेयर क्या करूंगा, मेरी IP एड्रेस, मेरी सीरियल नंबर, मेरी मैक एड्रेस, मेरी मॉडल नंबर, मेरी पोर्ट नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, आप मुझे शेयर करना। ये दोनों का बेसिक काम होता है। ओके, यूजेस एंड बेनिफिट, CDP ऑफर डिटेल्स सिस्को स्पेसिफिक डेटा। CDP जो डेटा शेयर करेगा वो सिस्को स्पेसिफिक रहेगा, मतलब सिस्को की सीरियल नंबर, सिस्को की IP एड्रेस, देन सिस्को की मॉडल नंबर। बट LLDP जो होता है वो मल्टीपल वेंडर को सपोर्ट करता है, लाइक पालो अल्टो से भी वो शेयर कर सकता है CDP को, पालो अल्टो से भी वो सिस्को के शेयर कर सकता है, एंड सिस्को से भी पालो अल्टो को आप शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिस्को की स्विच है तो उसके अंदर में LLDP नहीं चला सकता, आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, practical environment, enabling both protocol and Cisco devices maximize the network visibility and troubleshooting compatibility। बहुत सारे कंपनी में ऐसे भी होता है, वो CDP को भी ऑन रखते हैं, LLDP को भी ऑन रखते हैं, इसीलिए कि अगर सिस्को की डिवाइस है वो CDP से चले, अच्छे से काम करेगा, अगर दूसरा कोई डिवेंडर है देन वो LLDP से डिस्कवर हो जाएगा। और फायदा क्या होगा कि प्रोडक्शन जो आपके नेटवर्क होगा, मैं भी प्रोडक्शन नेटवर्क, मैं भी मैनेजमेंट नेटवर्क, उसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। इजी ट्रबल शूटिंग के लिए दोनों ही प्रोटोकॉल आप ऑन करके रख सकते हो। बट इंडस्ट्री में हर कोई हमने अभी तक जितने भी इंडस्ट्री को इंफ्रा प्रोवाइड किया है उसमें हमने एक ही प्रोटोकॉल हम ऑन करते हैं, मुझे LLDP। गॉट इट रजत? उसके बाद आता है आपका DTP क्या होता है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जैसे हमने पहले भी पढ़ा था और पहले भी मैंने आपको बताया था, नॉर्मली 3 टाइप के पोर्ट होते हैं, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट एंड हाइब्रिड पोर्ट। अभी हाइब्रिड पोर्ट को भूल ही जाओ, अभी पढ़ो एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट का सिंपल काम क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जिसके मदद से एक ही ट्रैफिक जाएगा, मतलब एक ही व्हीलर का ट्रैफिक जाएगा और वो जो डेटा जाएगा वो अनटैग रहेगा, कोई टैग नहीं लगाएगा उसके ऊपर। ओके, लेकिन जो ट्रंक पोर्ट होता है उसके अंदर हर कोई जा पाएगा। ओके, हर कोई उसके अंदर जा पाएगा। लेट्स से आपके गांव में या फिर आपके शहर में देखना, एक ऐसा रोड होता है, एक ऐसा हाईवे होता है जिसके अंदर सिंबल लगा रहता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैवी व्हीकल्स जाएंगे, या फिर जिसके अंदर 5 पहिए होंगे, 10 पहिए होंगे, वही गाड़ी बस इसके ऊपर जाएगा। ओके, तो उसके अंदर कोई साइकिल वाला या फिर मोटरसाइकिल जा ही नहीं पाएगा। लेकिन सेम केस में दूसरा कहीं रूट मिलेगा आपको, देखना उसके अंदर हर कोई जा रहा है। ओके, वही सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, जो एक्सेस पोर्ट होता है उसके अंदर एक ही VLAN के ट्रैफिक जाता है और ऑन टैग जाता है, कोई टैग नहीं लगाएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि एक ही VLAN के ट्रैफिक जाएगा। लेकिन जो ट्रंक पोर्ट होता है उसके अंदर हर एक VLAN के ट्रैफिक जाएगा, तो उसके अंदर टैग तो जरूरी है। तो वो टैग लगाने के लिए काम किस कौन आता है, आपके DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आपको काम आता है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है इसने, DTP ऑटोमेटिकली नेगोशिएट ट्रंक लिंक्स बिटवीन स्विचेस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड सपोर्ट मल्टीपल VLANs। बेसिकली एक स्विच को दूसरे स्विच से आप कनेक्ट करोगे, सारे VLAN के ट्रैफिक को आप फॉरवर्ड करोगे। उस केस में आपके पास क्या करोगे, आप ट्रंक पोर्ट इनिशिएट करोगे। तो ट्रंक पोर्ट इनिशिएट करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल है, व्हिच इज नथिंग बट DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इनकमिंग सेशन में, जो आपकी अपकमिंग सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा, जो DTP होता है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होता है जो आप ट्रंक पोर्ट बनाते हो ना, वो 2 तरीके का होता है, एक तो स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में क्या होता है, आप मैनुअली करते हो जाके, लेकिन डायनामिक में क्या होता है, आप नेगोशिएट ऑटोमेटिक कर देते हो। ओके, ऑटोमेटिक जब कर दोगे देन कल को अगर कोई इश्यू भी आया देन वो ऑटोमेटिक नेगोशिएट होकर सारे ट्रैफिक आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, आई थिंक जो मुझे आज लग रहा है कि DTP को आज हम नहीं करते, क्योंकि DTP में ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्सपोजर की भी ज़रूरत है। सो दैट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन मैं बस आज यही रिकमेंड करूंगा कि CDP और LLDP को आप सही से देखो, सही से समझो, और अपकमिंग सेशन में मैं आपको जो DTP है वो आपको एक बार और बता दूंगा। ओके, सो मीन वाइल मैं आपको CDP LLDP और एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास ये एक स्विच है, CDP को ऑन करने के लिए या फिर LLDP को ऑन करने के लिए सिंपल कमांड रहती है, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, ये होस्ट नेम कैसे डालना, वो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग सेशन में। क्यों? क्योंकि अपकमिंग सेशन की जो क्लास होगा, मेक श्योर यू गाइज आर प्रेजेंट ऑन अपकमिंग सेशन, बिकॉज अपकमिंग सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा एक नया फ्रेश स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी। ओके, इसके अंदर आपको LLDP या फिर CDP ऑन करनी है। लेट्स से पहले मैं LLDP को बंद ही कर देता हूँ। ओके,
देखो यहाँ पे एल एल डी पी नेबर करूँगा, कोई एल एल डी पी नहीं चल रहा, सो सी डी पी नेबर करूँगा, कोई सी डी पी नहीं चल रहा। अगर आपको एल एल डी पी अपने सी डी पी चलानी है देन आप सिंपल क्या करोगे, कन्फिग्रेशन मोड में जाओगे, सी डी पी रन करोगे, या फिर सिंपल जाके रन सी डी पी करोगे। ओके सॉरी, सी डी पी रन करोगे। सी डी पी रन जैसे करोगे आपकी स्विच में सी डी पी प्रोटोकॉल ऑन हो गया। ओके, अगर एल एल डी पी ऑन करना चाह रहे हो देन सिंपली लिखो एल एल डी पी रन, आपकी एल एल डी पी ऑन हो गया। ओके, अभी देखोगे कैसे, देखने के लिए यूजर मोड में आओ, शो एल एल डी पी नेबर। देखो यहाँ पे आपको एल एल डी पी अभी दिखा रहा है। ओके, ये दो स्विच मेरी, ये स्विच बेसिकली आपकी ये दो डिवाइस कनेक्टेड है, इस पोर्ट से कनेक्टेड है। ओके, सिंपल चीज आपको ये बता रहा है। ओके, और इसको अंदर अगर इस पोर्ट के इस स्विच, ये जो डिवाइस है दिस इज ए एक्सेस पॉइंट एंड दिस इज ए स्विच, अगर इनके तुमने आईपी एड्रेस जानना है, इसकी आईएसओ वर्जन जानना है देन सो एल एल डी पी नेबर के बाद डिटेल्स लगा दो, एंटर करो, देखो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दे देगा। जैसे मैंने आपको अभी कहा था, लेट मी, देखो जैसे ये कह रहा है ये आपका एक स्विच है, एक L3 स्विचेस है, ये इसकी जो आईएसओ पड़ा हुआ है L3 आईएसओ पड़ा हुआ है, जिसकी वर्जन है 17.12.4। ओके, और सेम चीज़ अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखो यहाँ पे वो आपको कह रहा है क्या कि ये जो कनेक्टेड है दिस इज ए सिस्को एक्सेस पॉइंट, ये शायद क्रशर काम नहीं कर रहा। ओके लेट मी आई जस्ट ओपन द पुट्टी। And make sure you guys are connected on upcoming session, because upcoming session में एक तो configuration की part हमारा बच रहा है, दूसरा DTP भी बच रहा है। ओके, so these are very important guys। ओके, let's open this। एक तो चल ही नहीं रहा। ओके देखो, सो एल एल डी पी नेबर में जैसे करूँगा, मुझे यहाँ पे एल एल डी पी दे रहा है। अगर पूरी की पूरी डिटेल्स देखना तो डिटेल्स लगाओ। देखो यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी डिटेल्स अभी ये दे रहा है। इसके अंदर जो मुझे कह रहा है, यहाँ पे देखो बी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपन में बताऊंगा, बस अभी जस्ट क्विक एक बता दे रहा हूँ कैसे क्या देखना है। तो सिंपली चलाने के लिए कमांड मैंने आपको बता दिया, और देखने के लिए सो एल एल डी पी नेबर लगाओ, नेबर दिखा देगा, फिर सो सी डी पी नेबर लगाओ, यहाँ पे आपको नेबर दिखा देगा। देखो यहाँ पे एल एल डी पी सी डी पी में भी एक नेबर आपको मिल गया, कोई चीज़ और 9130 एक्सेस पॉइंट। ओके, तो मीन वाइल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एल एल डी पी ही बता देता हूँ, उसके बाद हम सी डी पी करेंगे। ओके, तो नो बंद कैसे करोगे, कमांड जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसको बंद कैसे करोगे, नो सी डी पी रन, तो सी डी पी आपका बंद हो गया। तो सो एल एल डी पी नेबर में जैसे ही करूँगा, देखो ये सी डी पी एल एल डी पी की पूरी डिटेल्स है। ओके, इसके अंदर अगर मुझे और डीपली जानना है कि पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, और इसकी सीरियल नंबर क्या है, तो सो एल एल डी पी नेबर डिटेल्स, जैसे ही डिटेल्स लगाओगे देखो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे वो बताएगा। लेट्स जस्ट रीड ऑल द थिंग्स। देखो यहाँ पे बता रहा है 21 नंबर, मतलब ये जो स्विच जिसको मैंने लॉगिन किया है इसके 21 नंबर पोर्ट से ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है। ओके, ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है, और इसकी होस्ट नेम वो है जो आपकी एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, उस एक्सेस पॉइंट की होस्ट नेम ए है, जिसकी जो एक्सेस पॉइंट चल रहा है उसकी आईएसओ वर्जन ए है 17.9.8.5, और टेक्निकल कौन है उसका, सिस्को की एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, और वो बेसिकली कॉपीराइट क्या है उसका, उससे लास्ट टाइम कब कंप्लेंट्स में आया था, वो सारी चीज़ें हमें वो दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखो टाइमर भी दिखा रहा है। ओके, हुई चीज़ होल्ड डाउन टाइमर जो बाय डिफॉल्ट सिस्को में 60 था और एल एल डी पी में 30 था। ओके, यहाँ पे 113 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे मैनुअल सेट कर रखा है। ओके, उसके बाद सिस्टम की आईपी एड्रेस आपको बता रहा है, सिस्टम की जो आपकी मैक एड्रेस है उसकी मैक एड्रेस भी बता रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो डिटेल्स दे रहा है। गॉट इट रजत? और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको वो भी बताएगा कौन सी मॉडल है। लेट मी जस्ट चेक, कहाँ गया, okay, here is your version, here is your ISO version, here is your last compliance, here is your IP address, here is your host name,
हियर इज योर पोर्ट नंबर। यहाँ पे दो चीज़ें वो बताएगा, आपकी स्विच की पोर्ट नंबर क्या है और जो डिवाइस आपके पीयर से कनेक्टेड है उसकी पोर्ट नंबर भी वो आपको बताएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये बता रहा है ये जो स्विच कनेक्टेड, ये जो बेसिकली स्विच कनेक्टेड है, ये बेसिकली आपकी जिस स्विच को मैंने अभी लॉगिन किया है इसके 4 नंबर से कनेक्टेड है, और जो दूसरा स्विच है उसकी 4 नंबर से बेसिकली कनेक्टेड है, मतलब अपलिंक भी आपको ये बता रहा है। गॉट इट रजत? ओके। कोई डाउट है रिलेटेड टू सीडीपी एलएलडी? देखो सीडीपी एलएलडी में आपको और एक बार बताऊंगा अच्छे से, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास वो नहीं है जो ड्राइंग करने के लिए जो होती है ना स्मार्ट बोर्ड, वो अभी मीनवाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अपकमिंग सेशन में मैं आपको और एक बार डायग्राम करके सिमुलेटर पे लेके बताऊंगा कि कैसे कैसे ट्रैफिक जाता है, कैसे होता है। और मीनवाइल आज मंजित भी नहीं है, सो मीनवाइल अपकमिंग सेशन में और एक बार एक रिविजन होगा ये वाली क्लासेस। मीनवाइल उसमें आप और ही अच्छे से समझ पाओगे। एंड अपकमिंग सेशन में जाने से पहले इस क्लास को और एक बार देखना, अच्छे से पढ़ना इन दोनों प्रोटोकॉल को। कोई भी डाउट रहता है जस्ट टेक ए नोट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अपकमिंग सेशन में आप पूछना वो वाली क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अभी मुझे बता दो, कोई डाउट है? ओके। ओके देन, थैंक यू रजत। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ओके, थैंक यू। गुड नाइट मैन।